All right, so, let's start today's lecture. Today we are going to uh, embark upon a journey which will lead us to, uh, well, actually, it will connect us to DLC course that we had done in the last lecture, and then it will guide us further into an actual microprocessor, a practical, very practical microprocessor. In DLC, we just made up a pedagogical uh, microprocessor right at the end of the course. But now we are going to learn uh, a practical processor, and that is the CPU inside the PIC 46K22. Almost all of the PIC have the same processor. So study one to almost study all of them. So the PIC processor inside the CPU is a single cycle processor, uh, and it is very much similar to the DLC processor we studied in the last, towards the end of the last lecture. So let's see what we had done in the last lecture, last course. If you guys can go through that lecture notes again, you will know what we did in the last lecture. So basically, towards the end of the processor, we had developed a CPU in the last course. So if I go through that lecture again in the last course quickly, so that we don't waste a lot of time in today. Uh, so that course we had uh, here comes what was called a register file. From this register file, which is basically was an 8 by 8 register file, means it had 8 registers, and each register had 8 bits storage. So you could select two registers at the same time, uh, register B and register A from this 8 by 8 storage. So since this was a 8 by 8 storage, you needed 3 bits over here. To store, select one of these 8 registers. So whatever the value you give over here, if you remember, that went to the ALU. Whatever that we called B bus. Whatever we gave over here on A register, the contents of those register, they came here on this, and that we called A bus. There are 8 bit. Oh, not. So what we had here was, यहाँ पे क्या connect किया था हमने? Anyone? क्या connect किया था यहाँ पे? किसी को याद है? Anyone remember? Hassan, Iman.
Huda, Sir, Habib. we connected an ALU. Yes, very good. We connected an ALU here. And output of this ALU would go back to the register file. And this register, the result of all the calculation will be stored in the register that was called, this was called RD, destination register. And we had a instruction memory here. Instruction memory. All the instructions were supposed to be stored in here. And instruction connected memory was directly connected to the program counter, PC. As the PC would increment, the instruction memory will output instruction. Instruction by instruction, it will output instruction. Part of this instruction was, if we remember, was opcode. And opcode would go to instruction decoder. Instruction decoder. So Java of this instruction decoder was basically, instruction was like a cooking instruction, what to cook, and instruction decoder was the chef. It will ask everything what to do, every instruction. So it had many outputs that go to many parts of the instruction, and also it tells ALU what to do depending on the instruction. That was we called function, funct. And some many other outputs. Some of these were, for example, one output was a register write. A register write. Part of this instruction was sometime, as you remember, would go to uh, 8-bit or a 7-bit, you can say. Part of this instruction was what is called immediate value. Immediate value. And that immediate value was embedded in the instruction. Basically, these immediate values are the ones that basically provide all the seed values to the registers, all the starting values to the registers. Because when the computer starts, there is no value in the register. The registers are not written to, so you cannot read from them. These is so register. All the register contain a garbage value. So you have to have some way of providing some initial values to the register, and those initial values would come from
instruction itself in the form of immediate. For example, when I say variable 1 is sorry, थोड़ा गलत हो गया. कपड़ा किधर है सरफराज? कपड़े से मेरा ख्याल सही साफ होता है. चलो अभी तो ये करो. Right. So when I say short int variable 1 is equal to 10. So this variable 1, when compiled, compiler will compile this. It will assign a register to this variable 1, say register 5. And this value is part of the code. Variable equal to 10 is part of the code. This is called immediate value. You have to have immediate values to start your registers. Either you read from memory or you start your register. When you read from memory, usually you read from a shared memory where all the data is stored. For example, from a graphics card, you can read values of a frame or a bitmap, BMP file, something like that. Or you can read some array from a file into some variables. So when you are doing that, basically whatever you are reading from the file first comes into the RAM, then it is stored in the variables. So there are only two ways to populate your registers. One is by immediate values and the other is by reading from the RAM. And once the register file is populated with the values of interest, then you can add them. Subtract them, and do them data. That's all processor does. Read the value from memory or immediate value, or the other value, do some processing, save it back to the memory. All that is done. So the instruction decoder here is basically takes in the opcode. So opcode अगर add का है तो ये बताएगा कि एडर यूज होना है. अगर वो ये आपको जो है ये मेमोरी से लोड वर्ड मेमोरी से डाटा रीड करने का है तो ये कुछ और करेगा. अगर मेमोरी से डाटा राइट करने का है तो ये आपको कुछ और वैल्यूज इंस्ट्रक्ट करेगा. सो ये हमने पढ़ा था. फॉर एग्जांपल जब मेमोरी में राइट करना है तो रजिस्टर राइट 0 होना चाहिए, क्योंकि डाटा जो भी यहाँ से जाएगा वो मेमोरी यहाँ पे लगी हुई थी उसमें राइट हो जाएगा. तो वो भी अभी लगा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो. So data will be returned to the memory. Register will be not updated. So this variable here is 10. So basically इसके लिए processor execute करेगा R5 is equal to 10. तो ये पार्ट है, सॉरी मैं भूल गया. तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिकोडर. इट नोज के इस आउटपुट को देख के कि मैंने क्या ये कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, क्या यहाँ पे देना है, क्या यहाँ पे देना है. और यहाँ पे अगर मैं एक और मैंने लगाया था, अगर आप यू रिमेम्बर, एक हमने एक और मल्टीप्लेक्सर लगाया था, मक्स 221. दैट वाज 8-bit मक्स 221. सो इसका कंट्रोल क्या था, इसका भी एक कंट्रोल था. किधर गया मेरा मार्कर? इसका कंट्रोल ये बताता था कि इसको हम कहते थे इमीडिएट कंट्रोल.
ये भी इमीडिएट वैल्यू है, ये इमीडिएट कंट्रोल। तो ये बताता था कि अगर 0 है तो ALU ने A वैल्यू बस का और B बस का आपस में करना है काम। अगर 1 है तो क्या होता था, 1 है तो ये वैल्यू इधर से आती थी, 8 बिट की वैल्यू, ये किसी बी बस के किसी चीज से ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह ये जो भी करना करके ये वापस किसी रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे किसी वैल्यू में स्टोर हो सकती। सो दिस इज आल्सो अनदर कंट्रोल। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन आती थी तो इमीडिएट का कंट्रोल किसने बनाना है, वो आप कोड को देख के बनाता था कि हाँ इसके लिए इमीडिएट मुझे क्या चाहिए, इसके लिए इमीडिएट 1 होना चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की होती थी R6 इज इक्वल टू R5 प्लस R7, तो इसके लिए उसको पता था कि इसको 0 होना चाहिए, सो दैट R5 कैन कम फ्रॉम दिस एंड R7 कैन कम फ्रॉम दिस एंड रिजल्ट कैन गो टू R6. So all these controls, they were part of the opcode. So opcode was the one that would decide कि क्या क्या कहाँ पे क्या करना. Similarly, we can add a memory here. So memory output could come back over here. And we needed another multiplexer over here. Mux 0, 1. And this would be called ALU mem. Any name you can give, it's not really something that that is hard and fast. I'm just making some names up so that they are understandable. Let me draw this in red. This is called, what should we call this control? इस कंट्रोल का क्या नाम रखें? ये डिसाइड करता है कि ALU की वैल्यू में किसी जगह जाके राइट होनी है या मेमोरी में से जो डाटा रीड की है वो किसी रजिस्टर में राइट होना. इसका नाम बताएं क्या होना चाहिए, ये वाला कंट्रोल. इसका नाम कह सकते हैं क्या रखें इसका नाम, ALU मैम. वैसे मुझे याद नहीं आ रहा कि कुछ नाम हमने पहले शायद उस कोर्स में पढ़े भी थे. तो ये मल्टीप्लेक्सर ये डिसाइड करता है कि ये वाली वैल्यू मेमोरी से आएगी या कहां से आएगी. सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं कि R3 में जो वैल्यू आए इसको गेट
गेट्स अ वैल्यू, यहाँ पर गेट्स अ वैल्यू मतलब ये चीज जो शो करती है क्लॉक साइकिल शो करती है। तो बेसिकली गेट्स द वैल्यू मतलब ये कि क्लॉक साइकिल के बाद ये ट्रांजिशन इधर होगी। R3 गेट्स द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन R4. So R4 will be the address here, and this will be the data here. So in this case, this data does not matter because we are reading from the memory. This is called read, memory read. However, when we say memory location R2 is equal to R7, in that case, we are writing to the memory. In that case, contents of R7 will come here and R2 will be the address over here. The contents of R2 will be the address over here where to write the value. So this will be the address and this is the data to the memory. This is the address. So this is a write cycle because destination is memory. So this is called the write cycle. So all these tasks this would perform, and that was pretty much what it could do. When we were reading from the memory, so the data will address will come here to the memory. This is the model of address. So memory also needs a control here. That was called memory write. Memwrite. That memwrite was only one when we were writing to the memory. It was only one when we were writing to the memory. Otherwise, memory is it is zero, and memory is by default memory is in the read mode. All memories of the word, when you are not writing to them, they can either read or write. They are not clock signal. They are nothing. Clock doesn't go to memories, so they are not clocked signal. So they can either be read mode or in the write mode. By default, they are in the read mode. So when we are doing a ALU instructions like this becomes don't care. So memory data is don't care. So all of these instruction memory is also active. Usually it is cache 1, level 1 cache. So memory is also active in big processors. It is level 1 cache. We cannot really stop from memory to do nothing. It takes in this address and it gives it, although we are doing this R7 plus R5, but still thinks that R5 or R7 is the address, and it you know it uh, uh, it gives us an output at the data output. And but since this is an ALU type instruction, this control becomes 0, and so this data goes back, and this is don't care. So all these controls and many other, this is a very simple thing. All of these controls come from instruction decoder. So इंस्ट्रक्शन मेमोरी का पूछ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी है जिसमें आपका मेन स्टोर होता है, या आपके वेरिएबल स्टार्ट मेन स्टार्ट होता है ना, कि मेन के शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन आपने इस तरह की दी होती हैं। सो दैट्स वेयर योर मेन गोस।
So PC starts 000. It points to the instruction memory. Instruction memory returns an instruction. We'll talk about that in detail, don't worry. And part of that instruction that comes out of this is instruction memory की output data नहीं होता, as I talked about in the last course. Instruction memory की output is not data. Instruction memory की output, data output जो भी होती है वो actually data नहीं होती, वो instruction होती है. This size is not equal to 8 because 8 तो इसमें वैसे immediate bits होती हैं, तो इसका साइज जो है ना 8 नहीं हो सकता. इसका साइज 14 का होता है या 16 का होता है. Mostly it is 16-bit instruction. And inside this instruction, 6-bit or 5-bit, depending on the type of the processor, are fixed. The rightmost bits, MSB side of the bits in the instructions are fixed, and these few 5-6 bits are the opcode. They are basically the secret of the instruction. They are the cream of the instruction. They are the recipe of the instruction. They tell the processor कि मुझे ये रेसिपी या ये इंस्ट्रक्शन जो है ये यूजर राइट करता है, तो ये स्टार्ट तो यहाँ से होता है. यूजर ने कहा ये करो, यूजर ने कहा ये करो, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ से स्टार्ट होता है. ये जब इंस्ट्रक्शन जाएगी मेन में, तो पहली इंस्ट्रक्शन ये जब एग्जीक्यूट होगी, तो उस वक्त जो है वो प्रोसेसर को आउटपुट जो मिलेगा वो इसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो. तो यूजर ने कहा कि ये करना है, और मेमोरी में इंस्ट्रक्शन बनाई कंपाइलर ने कि इसको इस तरह से करना है. वो कंपाइलर ने आगे से एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन जनरेट की जो कि हेक्स फाइल में चली गई. वो हेक्स फाइल आपके प्रोसेसर में जब गई तो उसमें वही कोड था जो आपका वो इंस्ट्रक्शन यही काम करेगी. सो बेसिकली द प्रोसेस इज, यूजर ने सी में लिखा, सी से वो दैट वेंट टू द कंपाइलर, compiler generated a hex, intermediate form file. Then it went to the assembler. Every compiler in the world has an assembler. It's not clear to you, may not be able to see this, but later on we'll see कि assembly code कैसे generate होता है. सारा कुछ हमने देखना है in the last few lectures that we have. So that assembly code then is converted to the hex file, which is hex file is nothing but a binary code, bunch of digits, bytes. बस bytes होती हैं. हर बाइट जो 2 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन होती है, एक बाइट जो है उसमें से या उसका कुछ पार्ट जो है वो ऑपकोड होता है, बाकी उसमें इमीडिएट वैल्यू है. सो इस तरह से ये चलता है काम. So this is the almost the revision of the last lecture we had. So part of the instruction is the immediate value, and that is for this type of instruction. This is the immediate value that seeds all the registers. ये वाली वैल्यू, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपके कोड में नहीं है तो रजिस्टर फाइल में वैल्यू कहां से आएंगी? आपने फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 करना है या 0 to 10 करना है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आई को 0 करो, वो 0 यहां से होगा, और उसको आपने फिर लेटर ऑन 10 से कंपेयर करना है, तो 10 भी किसी रजिस्टर में जाएगा और उससे कंपेयर होगा. सो 10, 1, एनी नंबर दैट यू राइट इन योर कोड, एनी नंबर 0 to 9, any numbers that you write in your code, they become part of the immediate value, and they are actually part of the code. They are static values. अगर इसको आपने चेंज करना है, इनिशियलाइजेशन चेंज करनी है, तो आपको ये चेंज करके दोबारा कोड को कंपाइल करना पड़ेगा. So this is the journey that we are. This is just the tip of the iceberg. This is the base camp.
from where we'll start climbing towards the top of the mountain. This is the base camp. This is not the end. This is the beginning, the start. And this is happens to be just a very simple processor. So this is not going to be a Mount Everest that you have to climb. So this is going to be small. It's this lecture is, you can say, is climbing the Shimla Pahadi. शिमला पहाड़ी पे चढ़ने के बराबर है ये वाला लेक्चर. तो लेकिन ये कि later on we'll be able to climb some more high mountain. So if we say in short count equal to 0, तो काउंट को भी तो 0 करना ही है ना. अगर आप उसमें काउंट के कुछ राइट नहीं करेंगे तो काउंट को चेक कैसे करेंगे. So you need to put something in count. So if count is less than this, if count को किया है तो उसको काम तो करेंगे ना उसके ऊपर. उसके बगैर यू कैन, ये तो फंडामेंटल रूल है सी लैंग्वेज का कि यू कैन नॉट रीड अ वेरिएबल अंटिल यू हैव रिटन टू इट. तो ये रूल जो है ना, ये आपको इमीडिएट वैल्यू जो है ना, ये या फिर आप मेमोरी से रीड करें, ये वाला पाथ लें, यहाँ एड्रेस दें, यहाँ से डाटा है, वो मेमोरी यहाँ से चला जाए, ये एक पाथ ही है. और ये मेमोरी डाटा मेमोरी है, रैम है. तो इसमें डाटा अभी कहाँ से आता है, मे बी वो भी कहीं ना कहीं से इमीडिएट वैल्यू से जनरेट होकर मेमोरी में स्टोर होता होगा, अनलेस दिस इज अ शेयर्ड मेमोरी विद सम अदर हार्डवेयर लाइक नेटवर्क कार्ड, लाइक जहाँ से ये डाटा इधर आ सकता हो. अदरवाइज वो इमीडिएट से पाइल अप होके ये मेमोरी में जाएगा. अगर ये शेयर्ड मेमोरी नहीं है तो डाटा यहाँ पे कहाँ से आ सकता है. अगर कोई फाइल से आ सकता है इसमें, तो फाइल जब आप रीड करते हो तो वो भी क्या करती है, वो शुरू में वो भी एक कोड चलाती है जो मेमोरी से फाइल से हार्ड डिस्क से डाटा लेकर आईओ के थ्रू इसमें लेके आती है. वो आईओ पोर्ट्स होती हैं, वो सीधी सीधी आईओ पोर्ट से डाटा रीड होता है. 4 पोर्ट्स होती हैं हार्ड डिस्क की. हार्ड डिस्क कोई ऐसी कमाल की चीज नहीं है, हार्ड डिस्क भी 4 पोर्ट होती हैं. एक से डाटा जाता है हार्ड डिस्क को, एक से आता है. ये 2 कंट्रोल होती हैं. हार्ड डिस्क बताती है कि मैं फुल हो गई हूँ या मेरे पास ये मसाइल हैं, ये हैं. तो एक उसकी हार्ड डिस्क की स्टेटस पोर्ट होती है, एक हार्ड डिस्क की कंट्रोल पोर्ट होती है. तो 4 पोर्ट्स हर डिवाइस को दुनिया में असाइन होती है. तो हार्ड डिस्क से डाटा रीड होता है और वो मेमोरी में आता है, and that is done through the IO ports. IO port जो है ना, हार्ड डिस्क is to the processor, हार्ड डिस्क just 4 IO ports. Nothing more. So it can read data by providing the sector, file name वगैरह जो भी है. That is all done in the hardware abstraction layer. आप तो सी में बड़े आराम से कह देते हैं ना कि ओपन फाइल और डू दिस एंड डू दैट. तो सी में जो हार्डवेयर लेयर में जाके वो 4 पोर्ट्स पे डाटा भेजा जाता है, फिर जाके हार्ड डिस्क रीड होती है. So that is one, you can say, the repeat of the last where we ended in the last lifetime. So this is where it is. So any questions about this? मेरे तबीयत नहीं आज मुझे लग रहा है ठीक है कुछ, तो मैं अभी आज जल्दी खत्म कर दूंगा. तो 5 मिनट है हमारे पास, कोई क्वेश्चन पूछ लें जल्दी से. सही, आप अभी हार्डवेयर और हार्ड डिस्क की कोई बात कर रहे थे, तो वो बात आप रिपीट कर लेंगे अभी. हार्ड डिस्क की मतलब ये मैंने कह रहा था कि डाटा रजिस्टर में ही आके एग्जीक्यूट होता है. कहां से आ सकता है डाटा? वो या तो आ सकता है इमीडिएट के थ्रू, या वो आ सकता है मेमोरी के थ्रू. अब इस अगर मैं थोड़ा सा इसको, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं,
this not be just imagination kind of imaginative modification. This is what actually this is the modification that is there. मैं कोई अपनी तरफ से इमेजिन नहीं कर रहा कि ये जो एड्रेस बस है आपकी, ये जाती है फर्ज करें एक बिग एंड गेट के, और वहां से एक रजिस्टर को जाती है रीड राइट के साथ एंड होके, तो ये क्या बन जाएगी आपको, ये आपकी आउटपुट पोर्ट बन जाती है। एग्जैक्टली यही रजिस्टर फाइल किसी और एंड बेट को जाती है, यही एड्रेस बस, वहां से भी ये एक और एंड गेट के बाद ये ट्राई स्टेट बफर लग जाता है यहाँ पे, तो ये इनपुट पोर्ट, और इसको जाता कहाँ क्या चीज है, इसको ये एड्रेस आउटपुट क्या आती है यहाँ पर, ये किधर गया वो, कोई और कलर का मार्कर देख लेते हैं यहाँ पे। सो आउटपुट ऑफ दिस इज डाटा बस, 8 बिट की ये है, 8 बिट की ये, तो आउटपुट ऑफ दिस इज योर डाटा बस। So either it comes from goes to there, मैं यहाँ पे अब एंड गेट नहीं लगाना चाह रहा, ज्यादा ही कम्प्लेक्स हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर नहीं लगाना चाह रहा, कि उस केस में ये आईओ पोर्ट से रीड करता है, तो ये डाटा बस इधर जा रही है। आर दिस डाटा बस कैन कम फ्रॉम हेयर, ये वाली डाटा बस, इस केस में ये डाटा इधर राइट हो जाता है। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज, मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, तो ये डाटा बस इधर भी जा सकती है। उस केस में क्या होता है कि ये एड्रेस जो होता है इसको एक्टिवेट करता है, ये आउटपुट पोर्ट बन जाती है और ये डाटा इसमें राइट हो जाता है। इन केस इनपुट केस में ये डाटा इधर से आता है आउटसाइड वर्ड से, जो एड्रेस आप देते हैं इसका, ये दोनों एड्रेसेस जो है यूनिक एड्रेसेस होते हैं आईओ पोर्ट के, ये मेमोरी में इनके अगेंस्ट कुछ नहीं स्टोर्ड होना चाहिए। अगर मेमोरी में भी है तो इसका मतलब कुछ शैडो रजिस्टर बन जाते हैं, जिनको लैच रजिस्टर्स कहते हैं। ये पोर्ट रजिस्टर्स हैं, ये लैच रजिस्टर्स हैं, जिनमें वो डाटा साथ साथ लैच भी हो जाता है। तो ये डाटा इधर से आता है, इधर से आता है, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर और लगाना पड़ेगा आपको, सॉरी अबाउट दैट। तो ये वाला मल्टीप्लेक्सर का बताता है कि डाटा जो है ना वो आईओ पोर्ट से रीड करना है या मेमोरी की आउटपुट से रीड करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, छोटी सी चीजें ऐड करते जाएं और एक क़यामत की एक जिन बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी सी चेंजेस करें तो ये बिकम लाइक अ जिन। It's not simple. It doesn't remain as a simple device. It also slowly it gets complicated, and it becomes like so this is your data bus going here. This is your data bus going here. So this output device could be connected to this IO port could be connected to a hard disk, HDD, hard disk drive. So data can come from the hard disk, go to a register. तो हार्ड डिस्क का अपना कंट्रोलर है, उसका अपना प्रोसेसर है, उसको सारी ये उसको पता है कि मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो उसको सारा पता है कि किस तरह 4 पोर्ट्स होती हैं। इसको ज्यादा इसमें मैं 4 बिट का जो इंटरफेस मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये 4 पोर्ट्स का इंटरफेस होता है, जिससे ये एक पे वो बताता है कहाँ से रीड करना है, और एक से सिर्फ डाटा रीड राइट होता है। 2 पोर्ट्स होती हैं जो कि कंट्रोल और स्टेटस पोर्ट होती है। जिस तरह पोर्ट की भी 2 पोर्ट्स हैं, एक ट्रिस्ट पोर्ट है जो बताती है कि इसको आईओ करना है, इन करना है, आउटपुट करना है, और दूसरी पोर्ट है जो कि फिर एक्चुअल पोर्ट है, पोर्ट बी है और ट्रिस बी है। इसी तरह इसमें भी 2-4 और पोर्ट्स होती हैं जिससे आप इसको कंट्रोल करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज आईओ डिवाइस इज हियर। लो देखें कितने आसानी से हमने इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ये आईओ डिवाइस है, यही डाटा बस जब राइट होना होता है आईओ डिवाइस में, तो ये डाटा इधर से चला जाता है आईओ डिवाइस पे। ये इसी आईओ डिवाइस से जब डाटा रीड होना होता है तो ये इधर से आ जाता है।
इसके अगेंस्ट इसके अंदर बफर होगा, इसके अगेंस्ट इसके अंदर लैच होगी। जब इसने रीड करना है, ये अपने बफर के थ्रू इनपुट पोर्ट के जरिए रीड करता है। जब इसने राइट करना तो अपने लैच के थ्रू आउटपुट पोर्ट के जरिए, ये आउटपुट पोर्ट होगी, प्रोसेसर के लिए इनपुट पोर्ट होगी, इसकी ये आउटपुट पोर्ट होगी। यहाँ पे एक बफर होगा जो इस प्रोसेसर के लिए उसका इनपुट पोर्ट। सो दैट्स हाउ दे परफॉर्म। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिंपल सी आर्किटेक्चर। ये वाली डायग्राम मैंने कहीं नहीं आपको नजर आएगी। आपके एक सवाल क्वेश्चन पूछने पे मैंने ये डायग्राम बनाई है। आपको जाके दुनिया जहान की बुक्स आप खोल के देख लें, आपको ये वाली डायग्राम नजर नहीं आएगी। लेकिन ये जो डायग्राम है, दिस इज एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। This is what happens. These ports are dedicated addresses. They don't belong to the actual RAM. They belong to the I/O ports. And these are dedicated addresses. And this multiplexer decides कि आउटपुट इधर से आके जाएगी रजिस्टर फाइल में, आईओ पोर्ट से आके जाएगी, या मेमोरी से जाएगी, या एएलयू से। ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। या तो फिर आईओ पोर्ट, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिर रजिस्टर में डाटा जाने की। कि ये हार्ड डिस्क का डाटा इधर से आए और इधर से किसी रजिस्टर में चला जाए। वहां से रजिस्टर से जाएगा, फिर वो वापस मेमोरी में जाएगा। अगर आपने एक अरे रीड करनी है और एक बाइट इधर से आएगी, इधर से पहले वो रजिस्टर में जाएगी टेम्परेरी वेरिएबल में, जिसे आप कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू ए आई। तो इधर से वो किसी रजिस्टर में जाएगी। अगर अब आप कहते हैं कि बी आई इज इक्वल टू टेम्प, तो वो वेरिएबल इसमें जाना है वापस। तो उसने यहां से होके जाना है, रजिस्टर के थ्रू होके जाना है। डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में। So that really makes a very very interesting setup. इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं। तो यहाँ पर जो मैं लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, ये वाला मल्टीप्लेक्सर। इस मल्टीप्लेक्सर का कंट्रोल जो है वो ये डिसाइड करेगा कि मेमोरी से रीड करना है या आईओ से रीड करना है। तो प्रोसेसर की एक पिन होती है, इंटेल 86 के अंदर तो जरूर होती है, वो होती है MEM/IO पिन। तो MEM/IO आउटपुट डिसाइड करती है कि डाटा आईओ से आना है या मेमोरी से आना है। नजर आ रहा है जी? हाँ, मुझे नजर आ रहा है। तो थोड़ा ऊपर कर दूं, थोड़ा सा ऊपर भी नहीं होता, ज्यादा ही हो जाता। So this is MEM/IO control. This control decides कि डाटा मेमोरी से आके आएगा, वो आगे जाएगा, या डाटा आईओ से आएगा और वो आगे जाएगा। तो ये वाला जो मक्स है, ये वाला काम करता है। तो ये सारे कंट्रोल जो हैं, ये आप कोड के अंदर ही हिडन होते हैं। आप कोड बताता है कि क्या करना है, किस मल्टीप्लेक्सर से आना है। बेसिकली उसने खाना पकाना होता है, खाने की कंटेंट्स यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वो आप कोड एक ही आप कोड होता है जिसमें ये सारी चीजें पता बताई गई होती। Very very interesting, very interesting. So this is the complete processor in front of you.
It's not a joke. Just draw it in half an hour or so. सारा मैंने आपको बताया कि क्या काम, और ये इतना पावरफुल चीज है. It can do so many things. It can do almost all the instructions that you can think of. So instruction क्या काम करना है, कब डाटा इधर से आना है, वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है. प्रोग्रामर अपना कोड लिख के इधर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में डालता है, एंड देन दिस मशीन रन्स. द प्रोसेसर की मशीन उस कोड को लेके 1 माइक्रो सेकंड या इससे भी कम में एक इंस्ट्रक्शन फ्लो देती, ऐसे भागता है जैसे कोई, यू कांट इमेजिन, रन लाइटनिंग स्पीड. सो और क्वेश्चन पूछें इस तरह के क्वेश्चन. बेसिकली इससे बड़ा इंटरेस्टिंग सा कई दफा वी कैन डिस्कस न्यू थिंग्स दैट वी हैवंट डिस्कस्ड नेवर बिफोर. तो आप लोगों की जो है ना फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है लेक्चर में. कुछ और पूछें. So this is the big AND gate which actually decides कि किस एड्रेस के ऊपर पोर्ट बनाना. ये वाले एड्रेसेस जो हैं, ये पोर्ट एड्रेसेस जो हैं, ये ऑलरेडी डिसाइंड होते हैं. फॉर एग्जांपल पोर्ट बी का एड्रेस हो सकता है #87, इसका हो सकता है 88 एंड सो ऑन, 8 बिट का कोड. तो अगर इस एड्रेस पे और एड्रेस पे यहाँ मेमोरी में कोई डाटा नहीं स्टोर हो सकता, जब अभी प्रोसेसर कहता है मेमोरी 88 कि इससे डाटा इस पे R5 राइट करो, यहाँ पे 7 आ जाएगा फिर. तो ये R5 की वैल्यू आती है इस डाटा बस पे, और 87 जब एड्रेस आता है, ये एड्रेस है, यहाँ पर ये एड्रेस जो है ये फिक्स्ड एड्रेस होता है. यहाँ पर एड्रेस आप रजिस्टर नहीं देंगे आईओ पोर्ट के लिए, ये फिक्स एड्रेस होता है. तो ये 87 जब एड्रेस यहाँ पे आता है तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है. ये वाला एंड गेट एक्टिवेट होता है, ये पोर्ट एड्रेस होती है, यहाँ से क्लॉक आती है, और ये डाटा जो है R5 जो है ये इस पोर्ट के ऊपर राइट है. So this combination is done here. तो अगर R5 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है से 100, तो इधर R5 जो है रजिस्टर, उसमें वैल्यू होगी 100 R5 रजिस्टर में. तो जब आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो यहां से ये R5 सिलेक्ट होके इधर आएगी 100 वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी. यहां से ट्रेवल करेगी 100, इस यहां से जाएगी, ये सिलेक्ट होगा, यहां से जाएगी, फिर यहां से जाएगी, फिर इधर से ऊपर को चली जाएगी. यस, इट कैन ट्रेवल बोथ वेज, नीचे ऊपर हर डायरेक्शन में जा सकती है ये वैल्यू. तो ये वैल्यू ऊपर को चली जाएगी, यहां से ये इधर आएगी. So when I say this is the address, this is the value, and this port will be activated. डाटा इस पे राइट हो जाएगा. अब इस हार्ड डिस्क की मर्जी है, जब मर्जी रीड करे. अगर बफर भी होता तो फिर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि एक सेकंड के लिए राइट होना था, फिर अगला एड्रेस आ जाना था, अगली इंस्ट्रक्शन में वो डाटा गायब हो जाना था. इट नीड्स टू बी फिक्स्ड फॉर दिस टू गिव इट्स ओन टाइम कि जब मर्जी उसने रीड करना था. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही होगी अगर आप, इफ यू लुक एट फ्रॉम अ डिस्टेंस. So from a distance, this may seem like a mushroom or a spaghetti, but when you look at it one by one and see what is being done, the diagram जो है ना, ये मैंने पहले कभी ड्रा नहीं की इसका diagram, but this is where we are, and this is what we will be studying. This is what everything is done, how everything is done. So these are port addresses and so on. So any questions?
ये वाला लेक्चर जो है ना, ये आपको बार बार सुनना चाहिए। सही बात है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप इसको बार बार पढ़ें, समझें, इसको समझ लें, तो बड़े आपके बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगे कि प्रोसेसर काम कैसे करता है, क्या उसमें सीन्स होते हैं, कैसे चलता है। मे बी वी कैन एंड हेयर। जो ना वो काम की बात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जो क्रीम ऑफ द क्रस्ट इज, इट शुड, क्रीम को बहुत, इट शुड बी वेरी स्मॉल, ज्यादा इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। So let us end here. If you don't guys don't have any question. वो लोग कम है, 11 लोग आए हुए हैं, but you know they missed this. By reading this, they may not be, or looking at this, they may not be able to enjoy the lecture. All right. और क्वेश्चन कोई नहीं है तो let's say goodbye. Any question? No टाइप कर दें एक दो लोग। नहीं, नो भी नहीं टाइप करना। ओके, वह सारे लोग सो गए। ओके।